So good morning, all of you. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. The topic for today's class is scale up techniques or scale up process. Now, this is a very important topic and also very interesting. And here I will let you know how an idea can be converted substantially via various practical strategies in order to achieve a high output process. तो मेरा यहाँ कहने का मतलब क्या है स्केल अप प्रोसेसेस में या स्केल अप टेक्निक्स में? स्केल अप टेक्निक्स में मेरा कहने का सिंपल मीनिंग ये है कि यहां पर हम किस तरीके से कोई एक आइडिया है उस आइडिया को हम एक प्रैक्टिकल पाइप के थ्रू लेके जाएं, एक प्रैक्टिकल पाइप लाइनिंग के थ्रू लेके जाएं और उससे जो हमको एक प्रोसेस मिले वो प्रोसेस एक हाई आउटपुट प्रोसेस मिले। इसको आप सिंपल ऐसा कह सकते हैं स्केल अप प्रोसेस को, और सिंपली, और इसको यहाँ आप और सिंपल वे में ऐसे समझ सकते हैं कि स्केल अप प्रोसेस का मतलब ये है कि हाउ टू इंक्रीज द साइज और अमाउंट और प्रोडक्शन of a process by following certain strategies. इसको और सिंपल अगर हम लोग देखें, और सिंपल फॉर्म में देखेंगे भाई, और स्केल अप प्रोसेस का मतलब क्या हो सकता है? तो स्केल अप प्रोसेस का मतलब सिंपल यही है कि कोई चीज आपके पास में अभी एक छोटी मात्रा में मौजूद थी, कम मात्रा में मौजूद थी, अब आप उसकी प्रोडक्टिविटी को, उसके प्रोडक्शन को आप ज्यादा मात्रा में बढ़ा रहे हैं। दिस इज स्केल अप प्रोसेस, स्केल अप। सो let us first we know why the scale up process is required. So let us we know in a more simpler way why we need scale up process. तो स्केल अप प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कि स्केल अप प्रोसेस एक ऐसा स्ट्रेटजी है, एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर कोई चीज आपके पास में, जिसमें आप किसी प्रोसेस के साइज को या अमाउंट या उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं। तो इसका एक एग्जांपल है, जैसे सपोज कर लीजिए मैं अपने ही ब्रांच को, हम लोग या हम लोग केमिस्ट्री को यहाँ पर एम्फोसाइज करते हैं। तो लेट अस कंसीडर वी आर मेकिंग or we are synthesizing some product R. This is smaller R, right? We are making some product R in a small scale or in a small size. Now, here in a scale up technique, what we going to do, we will synthesize
the same product are in a large scale. In a large scale. And this is what the scale up is. देखिए स्केल अप टेक्निक क्या है, व्हाट इज स्केल अप प्रोसेस क्या है. स्केल अप प्रोसेस का मतलब है कोई ऐसा प्रोसेस या एक ऐसा टेक्निक जहां पर आप किसी प्रोडक्ट को जो आपके पास में कम मात्रा में मौजूद है उसके साइज को, उसके अमाउंट को, उसके प्रोडक्शन को आप बढ़ा रहे हैं. तो एग्जाम्पल के तौर पे देखिए यहाँ पे कैसे मैंने आपको बताया हुआ है, बहुत सिंपल है इसको समझना, कि आप अपने लैब में यू हैव सिंथेसाइज सम प्रोडक्ट आर इन अ स्मॉलर स्केल, or you are synthesizing some product R in a smaller scale, and now you want to synthesize the same product R with the same molecule which was earlier synthesized in a small batch or in a small volume or in a small size. Now you are converting the same product or you are producing the same product in a higher amount. Now here R represents the name of that particular compound, the chemical structure of that particular compound, or the chemical property of that particular compound, or the chemical name of that particular compound. There is no changes, but the changes is the overall size, overall the amount, and overall productivity of that particular product. So this is what the scaling of a process is. Scaling up of process is. Now why we required, or why it is required that product to be scaled up? Why it is required that we want to scale up the product? Why it is required we have to scale up the product? So if we look industrially, very first thing which has to be considered essentially, industrially the scaling up is required to satisfy or to achieve certain financial benefits. Because whenever any industry, irrespective, is increasing its size, of its batch or its process, this will ultimately means, or the intention of the industry is to achieve its certain financial goal, and which is its profit anyhow. Now this is the prospect of any industry to scale up process. The very first thing is to achieve certain financial goals, to achieve its profit. The next goal of scaling up the process is to competitively circulate the product into the market so that the company or so that the industry will able to acknowledge its presence in the market. Now this is the second strategy why any industry will scale up the product. So here, when the productivity or the size or the amount of any product is increased by the any industry or any company, its second consequence or its second strategy is the company wants its product to be available. It's available to the consumer right at the time, in comparison or in competitive to the other products which are well available on the same time, however at a
similar or certain slight difference in the price, or else the competitive strategy the industry which is following. So now by scaling up its product, or by increasing the size, the company here wants to make itself or make its product well present to the consumers anyhow. The third thing, when we will look into from some other dimensions, is to maybe the scaling up the product is done so that whatever the product any industry is making, it is used for human benefits. For example, if a production of any drug is increased, it may be due to certain human benefits for the treatment of certain diseases, or making that particular drug available as per the requirement or the conditions so as prevailing. So these are the certain dimensions why we are requiring the scaling up of technique. So how this scaling up is required, how this scaling up is done. So let us look into the various steps are ultimately be involved for scaling up of any product, or how a product gets transformed from an idea into the production scale, or from an idea up to its commercial scale. So the very first thing, let us assume we have something in our mind that we have to make some molecule, right? Just listen carefully how the scaling up can be done, or what are the various steps are involved for a product from its from its invention up to its commercial, or it's from up to its invention from its invention up to its commercialization. Now it is a very long process. The very first thing is the idea. You have something in your mind regarding any product, and you have certain idea. For an example, the idea from a chemistry point of view, you have an idea for a drug or a candidate drug. You have something like this in your mind. आपके पास में कोई आइडिया है कि आपके पास में कोई ऐसा मॉलिक्यूल है that can be used as a drug or a candidate drug from its future perspective. Now what do you do? अब आप क्या करेंगे यहाँ पे? Once you are having certain idea, you will test your idea. आपके दिमाग में कोई मॉलिक्यूल आया, अब इस मॉलिक्यूल को आप समझ रहे हैं कि भाई ये मॉलिक्यूल जो है आने वाले समय में एक बेहतर दवा साबित हो सकती है, एक बेहतर मॉलिक्यूल साबित हो सकता है किसी बीमारी को ठीक करने के लिए. So what you will do? क्या करेंगे आप लोग बताइए? आपके दिमाग में कोई आइडिया है और आप उस आइडिया को इस्तेमाल करके अपने मॉलिक्यूल को कमर्शलाइज करना चाहते हैं, तो आपके दिमाग में आइडिया के बाद आप क्या करेंगे? व्हाट विल डू? क्या करेंगे आप लोग? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? आवाज यस सर, आ रही है. तो आपके दिमाग में एक आइडिया है कि आपको कोई दवा है, उस दवा को कमर्शलाइज करना है. आपके दिमाग में कोई मॉलिक्यूल आया, कोई दवा के
आइडिया आया कि मतलब यू हैव टू ट्रांसफॉर्म योर आइडिया into a therapeutic molecule which can be further be commercialized as per the requirement. So पहला is step is the idea. Next one is the what you will do. After idea, what you will do? सर कोई भी पर्टिकुलर ड्रग को सिलेक्ट करेंगे। सर कोई आइडिया आएगा, देन उसके बाद सर कोई पर्टिकुलर लीड कंपाउंड फाइंड करेंगे। देखिए, चलिए ठीक, कोई आइडिया है आपके पास में, देन व्हाट इज योर नेक्स्ट स्टेप? यू विल टेस्ट योर आइडिया। सर कोई भी पर्टिकुलर ड्रग कैंडिडेट को सर सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद उसका एनालिसिस करने के लिए। अच्छा ठीक, देखिए आपके दिमाग में कोई आइडिया आया कि आप यू वांट टू मेक सम ड्रग। देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, कोई आइडिया आया कि आपको कोई दवा बनानी है, ठीक है, और ये मॉलिक्यूल नया है, अभी तक ये मॉलिक्यूल हमारे मार्केट में नहीं है, सपोज कर लीजिए। ओके सर। तो आप लोगों को क्या करना है, पहले आपके पास में आइडिया आया, यू हैव सम आइडिया इन योर ब्रेन, अभी वो आइडिया फिजिकल फॉर्म में नहीं आया है। व्हाट यू विल डू, यू विल टेस्ट योर आइडिया, you will do the testing. What you will do, you will test your idea. ओके सर। You will test your idea. अब आप उस आइडिया को टेस्ट करेंगे, भाई मॉलिक्यूल तो आ गया आपके दिमाग में, बहुत अच्छी चीज है, इट्स गुड, बट वेदर दिस मॉलिक्यूल इज फीजिबल, क्या वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है? आपके दिमाग में कोई मॉलिक्यूल आया, अब आपने कह दिया भाई हमने एक मॉलिक्यूल लगा दिया, दिस इज द मॉलिक्यूल विच आई हैव इन माय माइंड, और ये मॉलिक्यूल एक दवा के तौर पर एक्ट कर सकता है, लेकिन सिर्फ हमारे सोचने से ये काम नहीं हो जाएगा, हमने सोचा इसलिए वो काम नहीं हो जाएगा। सोचने के बाद में क्या है, व्हाट यू हैव टू टेस्ट योर हाइपोथेसिस। गेटिंग माय पॉइंट? व्हाटएवर द ड्रग इज इन योर माइंड, जो आइडिया आपके दिमाग में आया, वो आइडिया आपके दिमाग में जो आ रहा है, you have to test that idea whether this idea is feasible for the laboratory scale or not. Getting my point? बात समझ आ रही है आपको? So you are testing your idea. The next thing, you have to test your idea. How this testing can be done? This testing must be done. हाँ बोलिए please. Sir, by analyzing the drug. How you analyze the drug बेटा? अभी आपने drug बनाई ही कहाँ है? You have only have idea. भाई आइडिया है ना, आप उसको टेस्ट कर रहे हैं, कैसे एनालाइज करेंगे आप? चलिए ठीक है, एक्सप्लेन करिए, गुड, वेरी गुड, एक्सप्लेन करिए, शाबाश। हाँ बोलिए बोलिए प्लीज। नाउ सी, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसकी टेस्टिंग करेंगे, ठीक है, टेस्टिंग करेंगे विद इन आवर लैब्स कि वेदर the molecule which we want to become a future drug for treating any disease, whether this molecule is, we are able to synthesize this molecule well in the lab in a stable state. ठीक है, आप इसकी टेस्ट कर रहे हैं, इसकी आप टेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक। तो आपके पास जो मॉलिक्यूल आया, आपने क्या किया, उस मॉलिक्यूल की टेस्टिंग करी अपने लैब स्केल पे, ठीक है, लैब स्केल पे आपने उसकी टेस्टिंग करी। ये टेस्टिंग करने के बाद क्या इस मॉलिक्यूल को अपने लैब में बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं, और बनने के बाद में ये मॉलिक्यूल हमारे पास स्टेबल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्या करेंगे आप, व्हाट यू विल डू नेक्स्ट? फिर इसको जो हमने बना लिया, टेस्टिंग कर ली, इसके बाद हम लोग इसको एक हम लोग स्मॉल स्केल पे सिंथेसाइज करेंगे मॉलिक्यूल। देखिए अभी बीच के मैं इसमें बहुत मोटे मोटे स्टेप मैं आपको बता रहा हूं, इसको हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल स्केल पर सिंथेसाइज करेंगे, और जो पैरामीटर्स हैं उन पैरामीटर्स को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जब ये चीज स्मॉल स्केल पे आपने टेस्ट कर ली, लैब के बाद में स्मॉल स्केल पे टेस्ट कर ली। देखिए लैब भी स्मॉल स्केल हो सकता है, ऐसा नहीं है, लैब भी स्मॉल स्केल पे हो सकता है, बट स्मॉल स्केल को भी हम लोग दो कैटेगरी में कन्वर्ट कर देते हैं कि भाई एक स्मॉल स्केल जिसमें हम लोग R&D कर रहे हैं, लैब में कर रहे हैं, वो माइक्रो स्केल पे कर रहे हैं, हो सकता है,
स्मॉल स्केल का मतलब है कि हम लोग इस माइक्रो स्केल के थोड़ा सा ऊपर आके काम कर रहे हैं ना। तो हमने अपने मॉलिक्यूल को क्या किया, स्मॉल स्केल पे उसकी टेस्टिंग करी, हमने उसको स्मॉल स्केल पर उसको टेस्ट करके देखा, सिंथेसाइज किया, और सिंथेसाइज करने के बाद में हमने क्या किया कि अपने रिजल्ट्स को दोबारा से जो आपने माइक्रो स्केल पे टेस्टिंग करी थी उससे हमने उसको कंपेयर किया कि भाई हमारा जब हम माइक्रो स्केल पे टेस्ट कर रहे हैं जिन पैरामीटर्स को, उसको जब हम स्मॉल स्केल पे लगा रहे हैं तो क्या उन पैरामीटर्स में कोई डिफरेंस तो नहीं आ रहा है। क्योंकि जब हम लोग माइक्रो स्केल सिंथेसिस करते हैं तो माइक्रो स्केल सिंथेसिस करने में हर एक चीज हमारी आंखों के सामने नहीं आ पाती है, लेकिन जब हम स्मॉल स्केल सिंथेसिस करते हैं तो वहां पर कुछ ना कुछ चीजें जो है कहीं ना कहीं पे अगर कोई लेकिन जो बीच में छूट जाता है, कोई ऐसा एडवांटेज जो बीच में डिसएडवांटेज जो बीच में छूट जाता है, वो डिसएडवांटेज हमारे पास में स्मॉल स्केल सिंथेसिस में आ जाता है। स्मॉल स्केल सिंथेसिस के बाद में we will move for intermediate scaling, इंटरमीडिएट स्केलिंग को कभी कभी लोग पायलट प्लांट स्केल अप भी कहते हैं। इंटरमीडिएट स्केलिंग को हम लोग कभी कभी क्या कहते हैं, पायलट प्लांट स्केलिंग भी कहते हैं। तो पायलट प्लांट स्केलिंग में फिर दोबारा से उस प्रोडक्ट की टेस्टिंग करी जाती है, सारे पैरामीटर्स को फिर से ऑप्टिमाइज किया जाता है, ताकि अगर हम उस इसी प्रोडक्ट को जब लार्ज स्केल पे बनाए, बहुत बड़ी मात्रा में बनाए, तो हमने जो भी स्ट्रेटेजी बनाई है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उस स्ट्रेटेजी के जितने भी लेक्यूनेज हैं, उसके जो सारे पैरामीटर्स हैं वो एग्री कर जाएं, जिससे कि अगर हम इसको लार्ज स्केल पे इस दवा को बनाएं तो उस लार्ज स्केल पे हमको किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। So after intermediate state, when all the parameters are satisfied and we are well agreed with each and every step which was earlier optimized, then we move for what? अब कहां मूव करेंगे हम लोग? लार्ज स्केल प्रोडक्शन पे मूव करेंगे। एंड जब आप उसको लार्ज स्केल प्रोडक्शन पे अपनी दवा को बना लेंगे, एक बड़े स्केल पे बना लेंगे, देन यू विल फाइनली मूव फॉर, फिर कहां मूव करेंगे? देन वी विल मूव फॉर commercialization. Then we will move for the mass scale commercialization of the drug molecule, which was earlier in your mind. So this is how, this is just an overview. This is just an overview how an idea, you can see here, how an idea which is in our mind, how an idea of a drug or a drug molecule which is in our mind, how this idea has to sequentially move through various stages so that this idea is then be converted into a molecule which is feasible for commercialization. And once this molecule is successfully commercialized, whatever the goal which the industry wants to achieve, whatever the goals, financial goals which the industry wants to achieve, these goals are then
or the profit goals are then be well achieved by the industry without any hindrance. So now let us look into this particular thing which we have discussed right now, how we have scaled up, ठीक है। अब देखिए स्केलिंग कैसी है, ये जो मैंने बताया आप लोगों को समझ में आया? यस सर। ये जो मैंने आपको बताया समझ में आया? कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लीजिए। ये सर आ रहा है। आ रहा है? यस सर। अब देखिए यहाँ पर स्केलिंग अप क्या है, ये तो एक स्ट्रेटेजी हो गई, जिस स्ट्रेटेजी से आपके दिमाग में जो आइडिया थी ड्रग की, उस आइडिया से आपने स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए आपने एक दवा बना ली जिसको आपने कमर्शलाइज कर लिया, मार्केट में बेच दिया, ठीक है। अब यहाँ स्केलिंग कैसे है, हाउ द स्केलिंग इज। तो देखिए यहाँ स्केलिंग अप कैसे है, स्केलिंग अप प्रोसेस कैसे है, या हम लोग कह रहे हैं स्केलिंग अप कैसे है। देखिए स्केलिंग अप की डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताई सबसे पहले जब हमने लेक्चर स्टार्ट किया, तो क्या था स्केलिंग अप का प्रोसेस, डेफिनेशन। स्केलिंग अप का डेफिनेशन था कोई भी चीज जिसको हम लोग ज्यादा मात्रा में बना पाए एज पर रिक्वायरमेंट। बहुत सिंपल, स्केलिंग अप का मतलब ही यही है कि किसी भी प्रोडक्ट को या किसी भी चीज को, किसी भी सामान को उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप ज्यादा मात्रा में बना पाए। और ज्यादा मात्रा में बनाने का मतलब ही सिंपल ही होता है कि वो ड्रग या वो मॉलिक्यूल जो है एक सक्सेसफुल मॉलिक्यूल है और उसकी लगातार मार्केट में डिमांड है। तो यहां स्केलिंग अप कैसे है, देखिए जब आपके पास में वो ड्रग का आइडिया था, आपके दिमाग में उस ड्रग का आइडिया था, तो उसकी कितनी क्वांटिटी हम लोग सिंथेसाइज किए? 0, ठीक है। जब वो ड्रग सिर्फ हमारे माइंड में है, वो मॉलिक्यूल, व्हाट वी हैव सिंथेसाइज्ड नथिंग, वी जस्ट हैव अ स्ट्रेटजी वेल विद इन आवर माइंड। कोई क्वांटिटी नहीं है हमारे दिमाग में, वी जस्ट हैव अ मॉलिक्यूल, वी जस्ट हैव अ स्ट्रक्चर वेल विद इन आवर माइंड कि भाई ये मॉलिक्यूल जो हो सकता है, ये इससे हम लोग कोई दवा बना सकते हैं, नथिंग मोर एल्स देन दिस। नाउ यू हैव टेस्टेड your molecule in a lab and in a very small scale, in a micro scale, आपने उसको मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज किया अपने लैब में, माइक्रो स्केल पे सिंथेसाइज किया। तो सपोज कर लीजिए आपने जब उसको माइक्रो स्केल पे बनाया तो हो सकता है 1000 माइक्रोग्राम आया हो, 100 माइक्रोग्राम आया हो सकता है वो 1000 माइक्रोग्राम आया हो, है ना, हो सकता है वो 5000 माइक्रोग्राम्स आया हो। दिस डिपेंड्स ठीक। फिर आपने इसको स्मॉल स्केल पे बनाया, फिर आपने क्या किया, इसको इंटरमीडिएट स्केल पे बनाया। स्मॉल स्केल के बाद आपने इंटरमीडिएट पे बनाया। वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो सपोज करिए जो अभी आप 500 मिलीग्राम, 500 माइक्रोग्राम या 1000 माइक्रोग्राम या 5000 माइक्रोग्राम आप जो बना रहे थे, आपने उसको स्मॉल स्केल पे बनाया। ये भी बेंचिंग स्केल है। स्मॉल स्केल इज नॉट अ लार्ज स्केल, इट इज ऑल्सो अ बेंच स्केल, इट इज ऑल्सो, यू कैन से इट इज अ पोस्ट laboratory scale, you can say it is a post small scale laboratory scale. So यहाँ आपने बनाया तो maybe you have synthesized a molecule in a scale, maybe you have synthesized in 2 kilograms or maybe 1 kilograms, or as per requirement जो भी आपका requirement है, और you have synthesized only 500 grams, whatever your requirement is, मैं एक बात कह रहा हूं आपसे। तो जस्ट टू थिंक हाउ वी आर स्केलिंग अप। तो जब हमने स्मॉल स्केल पे बनाया तो हमने उसको 500 ग्राम बना ली, सपोज कर लीजिए, ठीक है, या 1 किलोग्राम बना लिया। नाउ आफ्टर स्मॉल स्केल वी हैव गॉन फॉर द इंटरमीडिएट स्केल, we synthesized here 50 kilograms, and after 50 kilograms at a large scale we synthesize 500 kilograms, and this 500 kilograms हमने जो बनाया उसको हम अल्टीमेटली फर्दर हमने कमर्शलाइज कर दिया। तो देखिए यहां पर हम लोग अपने प्रोडक्ट की स्केलिंग अप कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। देखिए मिलीग्राम,
gram, kilogram, and further you have 500 kilograms. These are the scaling up of your technique. You are increasing the size, you are increasing the quantity, you are increasing the production, you are increasing the amount. So this is what the scaling of technique is. Now, if you can see this chart which we have prepared, what our aim, हमारा एम क्या था? एक तो हमारा एम है कि हमें कमर्शलाइज करना है, नो डाउट. दिस इज आवर एम, दिस इज आवर फाइनल एम, कि हमको कमर्शलाइज करना है. दिस वी हैव टू कमर्शलाइज, ये हमारा एम है, फाइनल एम यही है, कमर्शलाइजेशन. लेकिन कोई भी इंडस्ट्री कभी भी अपना जो प्रोडक्ट बनाएगी तो उस स्केल को ऐसा नहीं करते हैं वो कि उनके पास में कोई मॉलिक्यूल है या कोई प्रोडक्ट है तो उसको उन्होंने सीधा क्या किया कि उसको पिक किया उस प्रोडक्ट को और उसको उन्होंने एक बार में हजारों की क्वांटिटी में, 1000 किलो में, 2000 किलो में बना दिया. ऐसा नहीं होता है. उस प्रोडक्ट की टेस्टिंग करी जाती है हर एक स्केल पे, स्मॉल स्केल से लेकर लार्ज स्केल पे, ताकि अलग अलग स्केल पे अगर कोई लेक्यूनेस हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं, जहां पर उस मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करने में या उस प्रोडक्ट को बनाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उस प्रॉब्लम को हम किस तरीके से टेक ओवर कर सकें, ताकि जो फाइनल प्रोडक्ट है, जो प्रोसेस्ड प्रोडक्ट है, पोस्ट प्रोसेस प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट के अंदर किसी भी तरह की कोई कमी ना हो, उसकी क्वालिटी के साथ में किसी तरह का कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना हो. क्योंकि अगर उस प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ में कॉम्प्रोमाइज हो गया तो वो प्रोडक्ट अगर मार्केट में जाने के बाद में अगर उसकी क्वालिटी खराब हो गई तो उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री की जो रेपुटेशन है, जो मार्केट वैल्यू है, वो कम हो जाती है, विश्वास डगमगा जाता है कंज्यूमर्स का. दूसरी चीज, पहली चीज तो भाई ये बहुत एसेंशियल है, किसी भी इंडस्ट्री के लिए बहुत एसेंशियल है कि वो इंडस्ट्री अपने मार्केट वैल्यू को बना के रखे, भले वो कम से कम अपने प्रोडक्ट को बेच सके. कम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, नो प्रॉब्लम, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा आप लोग. कम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. एक दिन में हम 50 किलो ही प्रोडक्ट बेच पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे प्रोडक्ट में कमी नहीं है. गेटिंग माई पॉइंट? यस सर. जो भी स्केल अप हो रहा है उसका स्ट्रेटेजी का, देखिए स्केल अप का एक स्ट्रेटेजी है कि वो जो प्रोडक्ट बन के आ रहा है बाद में, उसके स्केल अप टेक्निक्स का मतलब क्या है कि भाई उससे जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बना, हमने इतना सारा प्रोसेस करने के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट बनाया, उस फाइनल प्रोडक्ट के ऊपर उस कंपनी की एक रेपुटेशन डिपेंड करती है. तो कंपनी कभी नहीं चाहेगी, इंडस्ट्री नेवर वांट्स टू कॉम्प्रोमाइज विद इट्स रेपुटेशन. सो only the small amount of product is made, only a small amount of product is the industry is making, rather the product is of good quality. And once the good quality product is anyhow be reached to the consumers, or anyhow the good quality product is reached to the customers, day by day its selling will be increased anyhow, and the market value itself increased. पहली चीज ये हो गई इंडस्ट्री की. दूसरी चीज स्केल अप से क्या हुआ? दूसरी चीज स्केल अप से ये हुआ कि भाई जब हमने स्केल अप लगाया तो ड्यूरिंग स्केल अप प्रोसेस, ड्यूरिंग ऑल ऑफ द टेक्निक, while moving from the lower scale, while moving from the small scale to the higher scale, or while moving from the microgram up to the kilogram, the industry in a sequential manner, sequentially they have optimized each and every parameter that are used for producing the molecule or the drug or whatever the product of their interest, as well as they have selected the good quality equipments which are further be used to produce the quantity of product which are required as per the demand or the market demand of that particular product. So here they have sequentially optimized each and everything during all this scale up technique, during all this process, and by optimizing they have ruled out, they have evaluated, they have taken over all the challenges which are
there in the path to produce a quality product. So scaling up doesn't mean that we are increasing something. It is okay. This is true. As per the definition, it is true. We are increasing the productivity, we are increasing the size, we are increasing the quantity. But such increase in the size, but such increase in the quantity of product doesn't mean that we left over with the quality. This means that we are moving with the quality product while increasing the demand of the product as required, and we are nowhere compromising the quality. And this scale up is moved. The scale up technique is usually moved simultaneously with the overall productivity as well as the quality of product so as produced by any industry or the product which is used for any commercialization. Now, there are various factors which has to be considered while scaling up the technique. So these factors which has to be considered while scaling up the technique are very first thing is the economical value of the product. Once any industry is increasing its productivity, the productivity is only be done when the product is economic. So any product whose overall cost is low and the productivity is high, or at a lower cost, a high volume of product can be made, or at a low cost, a very cheap product can be made. Cheap in the sense doesn't mean the quality. Cheap in the sense that its overall price is low. So this should be considered while scaling up the technique. Then its market size. आप जिस प्रोडक्ट को बढ़ा रहे हैं, ज्यादा मात्रा में बढ़ा रहे हैं, तो क्या उस प्रोडक्ट को ज्यादा मात्रा में बनाने के बाद में प्रोडक्ट मार्केट में जाके बिक पाएगा? क्या उसका साइज है मार्केट के अंदर? क्या मार्केट में इतना स्पेस है कि जो प्रोडक्ट को हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी हम स्केलिंग अप बढ़ा रहे हैं या इसकी जो स्ट्रेटेजी बढ़ा रहे हैं, तो क्या वहां पर वो मार्केट में जाने के बाद में दैट प्रोडक्ट विल बी एबल और वी आर एबल टू sell the product in the market, it has its own value in the market. Then whether the product which we are scaling up, we have any further competitive sale or not. And we are able to competitively sell our product or not. Then जब हम जिस प्रोडक्ट की स्केलिंग अप कर रहे हैं, so whether this scaling up leads to achieve any company will leads to achieve its financial goal or not. हम स्केलिंग अप कर रहे हैं, हम किसी प्रोडक्ट का साइज को बढ़ा रहे हैं, तो क्या जो फाइनेंशियल गोल हम अचीव करना चाहते हैं, क्या हम अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? हम अपने प्रॉफिट को अचीव कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? सो ऑल दीज थिंग्स हैज टू बी इवैल्यूएटेड और हैज टू बी पिन पॉइंट व्हेन वी आर स्केलिंग अप
any product or any process. So scaling up is a very important technique. So anyhow, this is all for your today's lecture. अगर आप में से किसी को भी कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं. कोई प्रॉब्लम है आज की क्लास में? नो सर. ठीक. So I am binding my class right here, and in our next classes we will do look into various strategies that has to be framed and the step which has to be followed for scaling up of the technique. So thank you for today anyhow. Thank you. Thanks a lot. Thank you. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.